السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں عظمیٰ چودھری۔ ناظرین، کھیل اور کھلاڑی کی بات کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اعتماد اور تعاون میں بندھے گہرے برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی۔ عوام دوست بجٹ کے ثمرات، سرمایہ کاروں کا کامیاب حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 2564 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,24,588 پر پہنچا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر اظہار اطمینان۔ سٹاک مارکیٹ کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر چھونے پر مسرت کا اظہار۔ معاشی میدان سے مسلسل اچھی خبریں، حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیز پر اعتماد کی منظر۔ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ مہنگائی کی شرح میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات میں اضافہ معاشی ٹیم کی شبانہ روز محنت کی بدولت ممکن ہوا۔ وزیر اعظم وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے حکومتی اقدامات میں تعاون کی یقین دہانی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں مثالی قیادت اور ملکی وقار کو نئی بلندیوں تک پہنچانے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم سے اپنے حلقوں سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے کثیر الجہتی فورمز میں تعاون پر بھی بات چیت۔ بجٹ میں عام آدمی کے ریلیف پر خصوصی توجہ دی۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا۔ پینشن کے حوالے سے بھی اصلاحات کی گئی۔ چھوٹے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے۔ زرعی شعبے پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا۔ اصلاحات کے ذریعے معاشی کارکردگی اور طرز حکمرانی میں بہتری کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ بجٹ میں وسائل کی دستیابی کو دیکھتے ہوئے معیشت کے ہر شعبے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ نوجوانوں کو فری لانسنگ اور آئی ٹی کے شعبوں میں مواقع فراہم کریں گے۔ قرضوں کی فراہمی آسان بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پانی روکنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ دنیا کے سامنے عیاں۔ بھارت پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے نام دنیا کے سامنے لانے میں ناکام رہا۔ بھارت جانتا ہے پاکستان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کسی بھی جارحیت کی صورت میں اپنا بھرپور دفاع کریں گے۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید راسم منیر کی قیادت میں جنگ جیتی۔ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صدر ٹرمپ نے امن اور مذاکرات کی بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سختی سے مسترد کر دیے۔ مقصد اشتعال انگیزی کو فروغ دینا ہے۔ بھارت الزامات لگانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکے پاکستان پرامن بقائے باہمی مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، امریکی محکمہ خارجہ کا مسئلہ کشمیر پر بڑا بیان۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے خواہاں۔ امریکہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی تعاون پر اتفاق۔
امریکہ کا پاک بھارت جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ، خوشی ہے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی قائم ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی پوری دنیا معترف۔ انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں انتہائی اہم اور مؤثر ہے۔ جنرل مائیکل ایرک کوریلا کا امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں اظہار خیال۔ سعودی عرب سے پاکستانی حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع۔ ابتدائی پروازیں اسلام آباد، لاہور اور کراچی پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، لاہور میں پنجاب کے وزیر سیر خواجہ عمران نذیر اور کراچی میں صوبائی وزیر اوقاف ریاض حسین شاہ شیرازی نے حاجیوں کا استقبال کیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ اور چین کے ہم منصب کی حتمی منظوری باقی۔ امریکہ مجموعی طور پر 55% ٹیرف حاصل کر رہا ہے۔ چین کا ٹیرف میں حصہ 10% ہے۔ چین مقناطیس اور ضروری نایاب معدنیات فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ امدادی مرکز کے قریب مزید 61 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی میں بھی تیزی۔ خان یونس میں صہیونی فورسز کے فضائی حملوں میں 5 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 تک پہنچ گئی۔ ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ گرمی کی موجودہ لہر کل تک برقرار رہے گی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سبی، نورپور تھل، سرگودا، گجرانوالہ، سرگودا میں پارہ 48 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، مظفر آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ۔ رات کے اوقات میں گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات۔ Gone. Success. Another one. Totally over. South Africa on. لارڈز میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل۔ پہلے روز آسٹریلیا 212 رنز بنا کر آؤٹ۔ بیو ویبسٹر کے 72، سٹیون سمتھ کے 66 رنز۔ جنوبی افریقہ کے کگیسو ربادہ کی 5 وکٹس۔ مقابلہ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ آسٹریلیا نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائر میچ میں سعودی عرب کو 2-1 سے ہرا کر میگا ایونٹ میں جگہ بنا لی۔ عمان اور فلسطین کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ ورلڈ کپ کھیلنے کی عمان کی امید زندہ۔ اور برطانیہ کے کیری بولٹر اور ایما رادوکانو کوئنز کلب ٹینس چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئیں۔ جمہوریہ چیک کی ربیکا سرامکووا نے بھی لاسٹ 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب بھی، لیکن پہلے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم کا نوجوانوں کے لیے اسپیشل انیشیٹو پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور نیفٹیک کے باہمی اشتراک سے انڈسٹری کے ہمراہ ہنر سے روزگار کا سفر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے نیفٹیک کر رہا ہے۔ انڈسٹری کے ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی قومی و بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکلز، ٹیکسٹائل مرچنڈائزنگ، انڈسٹریل سٹیچنگ مشین آپریٹر، امپورٹ ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن، ٹیکسٹائل ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ، نیٹنگ مشین آپریٹر کے شعبوں میں 3 سے 6 ماہ کی مفت فنی تربیت کا آغاز۔ داخلے کی آخری تاریخ 20 جون۔ کلاسز
का आगाज 25 जून 2025। अहलियत की शराइत और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द भी होगा। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कास करता है, जो बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात भी शामिल है। इन मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को वसअत देने के लिए अहम मौका फराहम करेगा। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़्द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और नए शोबों में ताउन के इम्कानात तलाश करने के मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम दोस्त विफाकी बजट पेश किए जाने के अगले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड PSX 100 इंडेक्स में 2490 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस तरह इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 1,24,588 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कराची से इसी हवाले से आपको दिखाएंगे सुहेल जमाली की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सुबह से ही कारोबार में जबरदस्त तेजी का रुझान था, जो मार्केट की अख्ताम तक कायम रहा। 100 इंडेक्स ने 1,23,000 और 1,24,000 की दो नफसियाती हदें अबूर की। स्टॉक मार्केट के तज्जियाकारों का कहना है कि कारोबार में इजाफे की वजह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद है। साथ ही अवाम दोस्त बजट के समरात भी फौरी तौर पर सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमने जो फेडरल बजट का आउटले 17.6 ट्रिलियन देखा, उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड कलेक्शन एक्सपेक्टेड है टैक्स कीमत के अंदर भी, जिसकी बाद जो है गवर्नमेंट की जो PSDP की एलोकेशन है डेवलपमेंट के लिए वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इससे जो है सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने लगेगा। गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त बजट पेश किया, जिसमें रेवेन्यू टारगेट्स भी बढ़ाए, फिर साथ साथ सैलरीड क्लास को भी कुछ रिलैक्सेशन दिए, और सबसे बढ़कर जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रियल एस्टेट को हुकूमत पाकिस्तान ने रिलीफ दिया, उसका सोसाइटी के ऊपर काफ़ी मुस्बत असर पड़ेगा। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट 22% से गिरने के बाद 11% पे आ गया, तो हाउस फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ेंगे और हमारी जो इकॉनमी है उसमें हमें लग रहा है कि एक प्रोग्रेसिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसका स्टार्ट होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इस बजट को काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है। फौलाद, सीमेंट, इंजीनियरिंग, खाद, केमिकल और कमर्शियल बैंकों के सौदों में तेजी देखी गई। 477 कंपनियों के कारोबार में 282 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 157 में कमी और 38 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज 1 अरब 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के कारोबार की मालियत 46 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा रही। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 600 रुपये इजाफे के बाद 3,52,900 रुपये हो गई है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का मजहर है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया, तनख्वाह में इजाफा और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की का सफर जारी रहेगा। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा माशी टीम की शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हम सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिवालिया होने के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की का सफ़र एक मोज़ा है। माशी टीम की मेहनत और वतन अजीज़ के मफादात को अव्वलीन तरजीह देने की बदौलत ये मिसाली टर्न ओवर तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा।
हुकूमती पॉलिसीज के बदौलत माशी इशारियों में नुमाया बेहतरी। रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से 34 अरब 90 करोड़ डॉलर मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 28.8% ज़्यादा हैं। मई के दौरान 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मई के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमती मौशी टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौशी इक़दामात और अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और नए माली साल का बजट पेश करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही, मोहम्मद इलियास चौधरी और फ़र्रुख खान ने माशी तरक्की और अवामी फलाह के लिए हुकूमती इक़दामात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने भारत के साथ कशीदगी में मिसाली क़यादत और मुल्क की वक़ार नई बुलंदियों तक पहुँचाने पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। अरकान असम्बली का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत अवामी फलाह और मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से अपने हलकों से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कसूरुल जहदी फोरम्स बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ताउन पर भी बातचीत की। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मसला कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को बातचीत की तरफ लाना खित्ते और दुनिया के मफाद में है। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत का बयानिया झूठ पर मबनी था। उन्होंने कहा कि जंग के बाद भी भारत झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत का बयानिया, भारत का मौक़िफ़ झूठ पे मबनी है। उनका जंग झूठ पे मबनी था और उनका पोस्ट जंग का जो बयानिया है वो भी झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन का पैगाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात दोनों मुल्कों समेत दुनिया के मफाद में है। बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए तमाम इश्यूज, चाहे वो कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी, तमाम इश्यूज का हल निकाला जा सकता है और जंग किसी मसला का हल नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान के पानी को रोकने की भारत की धमकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, जबकि धमकी पर अमल ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे पाबंद है। पाकिस्तान का पानी बंद करने का सिर्फ धमकी देना यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर में किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमन के लिए अमरीका और आलमी दुनिया की काविशों को सैबोटाज कर रहा है। वफ़द के दूसरे अरकान ने कहा कि दिफा के शोबे में 10 गुना ज्यादा खर्च करके भी भारत को वाज़ेह शिकस्त हुई। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मुकर्रर करदा आला सतह वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लंदन के कामयाब दौरों के बाद यूरोपीय यूनियन की दारकूमत ब्रसल्स पहुँच गया। दौरे का मकसद भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला जम्मू कश्मीर के हल की अहमियत को उजागर करना है। वफ़द के अरकान में वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक, सेनेटर शरी रहमान, हिना रब्बानी खर, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान और सेनेटर सैयद फैसल अली सब्ज़वारी शामिल हैं। ब्रसल्स पहुंचने पर यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और सफारत खाना पाकिस्तान में तैनात अफसरान ने वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम किया। वफ़द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। यूरोपीय हुकाम के साथ साथ पार्लिमानी वफ़द की ब्रसल्स में यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بجٹ میں متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں معیشت کے ہر شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات ہیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد شاہد۔ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معیشت کو صحیح سمت پر گامزن کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے صنعتی شعبے کو ترقی دینا ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی منڈی میں مسابقتی بنانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ We are going to change fundamentally the DNA of the economy. ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں۔ اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈز جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی جس سے وہ کمپیٹیٹو ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو فری لانسنگ اور آئی ٹی کے شعبے میں ترقی دینے کے لیے سازگار ماحول دیں گے، جس میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے۔ The government has to provide enabling environment to the youth. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے، ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور ان کو بھی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج۔ یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت کے کئی شعبوں میں بہتری کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ چھوٹے کسانوں کو قرضوں کی فراہمی آسان بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق we negotiated that with the fund کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر اس پہ نہ لگایا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پائیدار اقتصادی ترقی اور سماجی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے معاشی بحالی، حکومت اقدامات اور اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے ساتھ معیشت کے تمام شعبوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد میں حکومتی معاشی ٹیم کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ اپنی اس رپورٹ میں۔
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बजट में इजाफी टैक्सेस के बजाय इन्फोर्समेंट को तरजीह दी गई है। इस साल हम 10.3 तक इंशाल्लाह टैक्स टू जीडीपी पहुंचेंगे, अगले साल 10.9 तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। तो ये जो कैसे पहुंचना है, ये जो 2 ट्रिलियन रुपीस पे जो बात हुई है, उसमें जो एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं या एडिशनल मेजर्स जो लिए गए हैं वो 312 बिलियन के करीब है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 ट्रिलियन रुपए में हमने उसमें ऑटोनमस ग्रोथ है और इन्फोर्समेंट का मेजर है। वजीर खजाना ने कहा कि बजट में आम आदमी की रिलीफ पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। लेकिन आपने सारी उस स्लैब्स की डिस्कशन देखी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स also at the highest level of that salary class. मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बजट में ज़राअत, सनत और छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों समेत अशिया साजी और तामीरात के शोबों के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। इस साल हमने जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स, एडिशनल टैक्स आयद करना था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड कि ये अब एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। एग्रीकल्चर का जो फाइनेंसिंग ग्रोथ है वो हमने कल बजट स्पीच में उसका जिक्र किया, और ख़ास तौर पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्ज़दाद दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। वजीर खजाना ने कहा कि ढांचा जाती इस्लाहात के जरिए माशी कारकर्दगी और तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी का अमल जारी रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा माली साल के बजट को फिस्कल कंसोलिडेशन और सस्टेनेबल इकनॉमिक डेवलपमेंट की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि ये बजट तरक्की के लिए दरकार वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाएगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त। रवां माली साल के दौरान जुलाई से लेकर अप्रैल तक यूरोपीय ममालिक को की जाने वाली बरामदात में 8.6% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट करेंगी आयशा आफरीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में यूरोपीय बरामदात 6 अरब 95 करोड़ डॉलर से बढ़कर 7 अरब 55 करोड़ डॉलर हो गई, जो कि 8.6% इजाफा है। यूरोपीय मार्केट में खास तौर पर पाकिस्तान के टेक्सटाइल, मलबूसात और होम टेक्सटाइल की मांग में इजाफा हुआ, जिसने मुल्क की सनत, खास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फायदा पहुँचाया। इस कामयाबी में SIFC का किरदार निहायत अहम रहा, जिसने बरामदी शोबे को सहूलियात, रहनुमाई और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के जरिए यूरोपीय मंडियों तक मौसर रसाई फराहम की। पाकिस्तानी मसनूआत की बैनुल-अक़वामी मंडियों में बढ़ती हुई मकबूलियत न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बाइस बन रही है, बल्कि रोजगार, सनती तरक्की और बरामदी इस्तेदाद में भी बेहतरी आ रही है। हुकूमती पॉलिसियों और इदारा जाती इश्तराक से हासिल होने वाली ये कामयाबी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के अज़्म की गमाज़ है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में आलमी बरामदी मंडी में एक मुस्तहकम मकाम हासिल कर सकता है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कोयटा के गैर फाल थर्मल पावर प्लांट को 62 करोड़ रुपए में फरोख्त करने का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। सेंट्रल पावर जनरेशन इस्लामाबाद में होने वाली बिडिंग में बोली दहिंदा की सरबमोहर पेशकश को मीडिया के सामने खोला गया। बोली दहिंदा की जानिब से प्लांट की मतलूबा कीमत से 5% जायद पेशकश की गई थी। 57.1 मेगावाट के गैर फाल पावर प्लांट की मतलूबा कीमत 59 करोड़ 14 लाख रखी गई थी। और पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ब्रसल्स में मुख्तलिफ मीडिया इंटरव्यूज़ के दौरान दिए गए गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि ऐसे बयानात न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफ़ी हैं बल्कि ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाने का बायस भी बन सकते हैं। शफ़क़त अली खान ने कहा कि भारत गुज़िश्ता कई साल से एक मनगढ़ंत बयानिए के जरिए खुद को मज़लूम ज़ाहिर करके आलमी बिरादरी को गुमराह करने की मज़मूम मुहिम में मसरूफ़ है। भारत की जानिब से की जाने वाली मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई, उसके सरहद पार दहशत गर्दी की पुष्टपनाही और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी रियासती जबर और तशद्दुद पर पर्दा नहीं डाल सकती। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि भारत को दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। शफ़क़त अली खान ने कहा कि भारत की हालिया बयानबाजी उसकी मायूसी की अक्कासी करती है, जो उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक नाकाम अस्करी मुहिम के बाद लाहक हुई है।
پاکستان کی سفارتی کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے توقع ظاہر کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے دور صدارت میں مسئلہ کشمیر حل کرا سکیں گے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں کنزان نقوی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل مینج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنی مدت کے دوران مسئلہ کشمیر حل کرانے کے خواہاں ہیں۔ recognize that President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. It's an exciting time that if we can get to a point in that particular conflict. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کے مطابق پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں امریکی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور ایلس ہاکر سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ Pakistani parliamentary delegation during a visit they had to Washington last week. She reiterated U.S. support for the ongoing ceasefire, as you might imagine, thank God, between India and Pakistan. They also discussed important issues to the bilateral relationship, including counterterrorism cooperation. پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی بھی تصدیق کی۔ تجزیہ کاروں نے امریکہ کی مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کو خوشائن قرار دیا ہے۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر کشمیر کے دیرینہ تنازع کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کنزان نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دیا ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی میں پاکستان ایک غیر معمولی شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق خان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے کہا کہ پاکستان کی شراکت داری انسانی دہشت گردی کے عالمی تناظر میں انتہائی اہم اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ جنرل کوریلا کا کہنا تھا کہ داعش خناساں اس وقت عالمی سطح پر سب سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں میں شمار ہوتی ہے۔ جنرل کوریلا نے اعتراف کیا کہ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خناساں کے درجنوں دہشت گرد کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتاریوں میں تنظیم کے کم از کم 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے کہا کہ 2024 کے آغاز سے اب تک پاکستان کی مغربی علاقوں میں 1000 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے۔ ان حملوں میں تقریباً 700 سیکورٹی اہلکار اور شہری جاں بحق اور 2500 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان فعال انسانی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داعش خراساں کمزور ہو چکی اور اس کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حالیہ مہینوں میں انہیں پہنچنے والا بھاری نقصان ہے۔ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہوں گے۔ محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امریکہ میں مودی سرکار کا خفیہ نیٹ ورک بے نقاب۔ امریکہ کے فرمان گردوارے نے ہندو امریکن فاؤنڈیشن کو مودی سرکار کا اعلی کار قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں طاہر جعفری کی رپورٹ۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے والی مودی سرکار 2014 سے عالمی سطح پر بھی ریاستی دہشت گردی کا جال بنتی آ رہی ہے، جو اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ امریکہ کے فریمونٹ گردوارے نے ہندو امریکن فاؤنڈیشن کو مودی سرکار کا غیر ملکی ایجنٹ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے مفادات کو امریکہ میں فروغ دے رہی ہے۔ فریمونٹ گردوارے نے مطالبہ کیا ہے کہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن کو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کر کے امریکی محکمہ انصاف ہندو امریکن فاؤنڈیشن کی تحقیقات کرے۔ دی گارجین کے مطابق مودی سرکار پہلے ہی سکھ کارکنان کے خلاف کینیڈا اور امریکہ میں کارروائیوں کے الزامات کی زد میں ہے۔ ہردیپ سنگھ نجار کو قتل کرنے کے بعد بھارتی حکومت کے بیرون ملک سکھوں کے خلاف اقدامات کھل کر واضح ہو گئے ہیں کہ بھارتی ایجنٹ نے امریکی شہری اور سکھ کارکن گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ Security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India
and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Vikram Yadav was the point man. He apparently forwarded important details to the hitman, details like Pannu's address. US officials believe this was a sanctioned hit. Potential links to the Prime Minister's inner circle. US officials think National Security Advisor Ajit Doval was in the loop. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद आलमी सतह पर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद अवाम दोस्त बजट दिया है। हुकूमत के कारोबार और सनतों के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दामात को कराची की ताजिर बरादरी ने बेहद सराहा है। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने आइंदा बजट में भरपूर कोशिश की है कि तमाम शोबों को हर मुमकिन रिलीफ फराम किया जाए। जहां एक तरफ तनख्वाहदार तबके को तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स स्लैब में रिलीफ मिला है, वहीं मुल्क के ताजरों और सनतकारों के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं ताकि मईशत मजीद तरक्की करे और नई मुलाजमतों के मौके पैदा हों। ऑल ओवर जो अभी तक हमें बजट जो हमें सामने हमारे है, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा जो एक पैकेज दिया है कि 7% FED जो ट्रांसफ़र ऑफ प्लॉट्स पे हटा दी है, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कमी की है। मैं समझता हूँ कि उससे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अच्छा बेनिफिट पहुँचेगा। ओवरऑल अगर आप देखते हैं इस बजट में, तो इस बजट में जो इम्पोर्टर है उसको ज़रा सहूलत दी गई है, और वो सहूलत ये दी गई है कि जो टैक्स स्लैब है वो 20% से 15% पे ले आए हैं, और कई स्लैब जो है वो 941 स्लैब जो है वो 0% पे ले आए हैं। ये चीज़ें ये रॉ मटेरियल्स पर इफ़ेक्ट करेंगी। गवर्नमेंट जो राइस सेक्टर को सपोर्ट जहाँ से मिलता है वो मिलता है ज़राअत से, तो ज़राअत में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे 7 लाख स्मॉल फार्मर्स को गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देगी बगैर सिक्योरिटी के, तो इससे ये काफ़ी फ़ायदा होगा। इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी, टेक्सटाइल मशीनरी पर टैक्स खत्म करने समेत कस्टम ड्यूटीज पर टैक्स कम करने की तजवीज़ से ताजिर बरादरी बहुत मुतमईन नजर आ रही है। ये बजट इस बात का अक्कास है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के साथ मईशत की तरक्की के लिए भी पुरअज़्म है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चीनी ऊँट की कारोबारी शख्सियात ने वफाकी बजट को मुस्बत और इससे मुल्क की मईशत को मजीद संवारने के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया है। अवामी मुश्किलात को हल करने के लिए हर हुकूमत कोशिश करती है। बेहतर यही है कि अखराजात को जहाँ तक मुमकिन हो कम किया जाए। कर्ज लेने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना बेहतरीन हिकमत अमली है। 2-3 साल कबल मुल्क डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पर था और रवां साल पहली बार मईशत का हुजम $400 अरब से ज़ायद रहा, जो बड़ी कामयाबी है। जो मौजूदा बजट पेश किया गया है, इसमें कुछ मुस्बत असरात हमें नजर आए हैं, जैसे टैक्स नेटवर्क को वसी करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि अमली इकदाम से इसमें मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन जी हुकूमत जब से आई है उस वक्त से लेकर अब तक मुआशी बहरानों का इन्होंने सामना किया है, और बड़ी मुश्किल से जो डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी उससे ये निकले हैं, और ये शदीद मुआशी गर्दाब से निकलने के बाद जो बजट पेश किया गया, इससे हम ये तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो ताजर हैं, और दीगर जो इनकम टैक्स और दीगर मसाइल के घिरे हुए लोग हैं, उनको बेहतरी होगी। बलूचिस्तान के लिए नए माली साल का बड़ा तोहफा, कराची कोयटा चमन N25 कौमी शाहराह का डबल कैरेज वे मंसूबा वज़ीर आज़म की खुसूसी तवज्जो पर PSDP में शामिल किया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। बलूचिस्तान का फेडरल महसूलात में शेयर 8,200 अरब रुपए होगा। बलूचिस्तान बजट में कराची कोयटा चमन 813 किलोमीटर N25 कौमी शाहराह डुअल कैरेजवे मंसूबे को फेडरल PSDP में शामिल करने और मंसूबे के लिए 100 अरब रुपए मख्तस करने पर वजीर आजम का शुक्रगुजार है। PSDP में जो बलूचिस्तान के लिए जो उन्होंने कराची चमन रूट के लिए जो 100 अरब रुपए रखे हैं, वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है बलूचिस्तान के लिए। कच्ची कैनाल के लिए 69 अरब, पटफीडर कैनाल के लिए 1.8 अरब और गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड अपग्रेडेशन के लिए भी विफाक ने बजट में 1.9 अरब रुपए रखे हैं। 5 अरब रुपए नए माली साल के दौरान आवरान, पंजगूर, ग्रूक और गेशकोर डैम्स पर खर्च होंगे। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल का कयाम भी फेडरल PSDP का हिस्सा है। गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए PSDP से इमदाद का तसलसल भी बजट में बरकरार रखा गया है। चमन से लेकर कराची तक 813 किलोमीटर रोड है, उसके लिए 100 अरब रुपए रखा था। बहुत एक्सीडेंट हो रहा था, हजारों लोग सालाना शहीद हो रहे। बाकी गवर्नमेंट का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से उस लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
बजट तकरीर में वजीर खजाना ने रेकोदिक कॉपर गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट को मुस्तकबिल का अहम असासा करार दिया। मंसूबे से मुल्क को $75 अरब से जायद कैश फ्लोज और 40,000 मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। रेकोदिक से गवादर और पोर्ट कासिम कराची तक रोड और रेल नेटवर्क पर भी काम जारी है। CSR के अलावा मंसूबे से $7 अरब के टैक्सेस और $7.8 अरब की रॉयल्टी भी मुतवक्के है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। खबरनामे में शामिल मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये सुई सिर्फ कपड़ा नहीं, नौजवानों के ख्वाब भी बुनती है। अब वक्त है इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। नेफ्टेक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है इंडस्ट्री के माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स, ड्रेस मेकिंग, मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स, कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कैड कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल जैसे शोबों में 3 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। दाखिले की आखिरी तारीख 20 जून 2025। एहलियत की शराइत और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला हैं, जो अवामी खिदमत का जज्बा ही उनकी मकबूलियत की असल वजह है। अज़मा बुखारी ने कहा कि सिंध के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि सिंध हुकूमत मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करे, महज बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि सुथरा पंजाब वज़ीर आला का प्रोग्राम है, जिसकी निगरानी वो खुद करती हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ दिया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने लाहौर में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुखालफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। इन लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो पूरी ना हो सकी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ दिया है। IMF के एक सख्त और मुश्किल शिकंजे के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, उसके होते हुए भी वफाकी बजट के अंदर रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए। उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं मुख्तलिफ मदों के अंदर। लेकिन इस मुल्क में ऐसी मखलूक भी है जो पाकिस्तान के लिए कोई भी खुशखबरी आए तो वो खुश नहीं होते। उन्होंने उस खुशखबरी के अंदर से भी जो है वो उनको जो है वो हर वक्त नाकामी चाहिए होती है, वो हर वक्त कोई ना कोई साजिश जो है वो कर रहे होते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अलाइशें उठाने के लिए सूबे भर में ज़िला और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग की गई और शिकायत का फौरी अजाला किया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग के नाकदीन ने भी हमारी तारीफ की है। पंजाब के अंदर हमने 3,15,000 टन टोटल अलाइशें जो है ना वो उठाई, जो कि पिछले साल से 74% ज़्यादा है। CM पंजाब ने इस तारीखी अचीवमेंट के बाद जो हमारे असल हीरो हैं सैनिटरी वर्कर्स, उनके लिए फ़ीकस 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान किया है। सूबाई वज़रा ने कहा कि पंजाब खिदमत की जो मिसाल कायम कर रहा है, इसकी मिसाल 78 साल में नहीं मिलती। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब से पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान पहुंचने वाले हाजियों का वफाकी और सूबाई वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। पहली परवाज PK 732 307 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंची तो वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ने कहा कि हुज्जाज इंतजामात से खुश हैं। हुज्जाज कराम जो हैं माशाल्लाह बड़े हशाश बशाश और वहाँ पे जो इंतजामात किए गए थे उनसे बहुत खुश नज़र आए और अल्लाह ताला के फजल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ये भी एजाज़ हासिल है कि हमारी जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ अरेंजमेंट्स हैं उसके तहत
तकरीबन जो 38,000 के करीब हुज्जाज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुए थे हज करने के लिए, उनकी जो इमिग्रेशन जद्दा एयरपोर्ट पे होनी थी वो हमने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही सऊदी हुकाम की मदद से करवाई। कराची की पहली हज फ्लाइट निजी परवाज के जरिए 148 हुज्जाज कराम को लेकर जद्दा से जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। सूबाई वजीर महकमा औकाफ सिंध रियाज हुसैन शाह शेराजी और एयरपोर्ट के आला हुकाम ने हार पहनाकर हुज्जाज कराम को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर हाजियों का कहना था कि सरकारी स्कीम के तहत हाजियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मुयस्सर आईं। सऊदी अरब से निजी एयरलाइन के जरिए 147 हुज्जाज कराम लाहौर पहुंचे तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर आला हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने हुज्जाज कराम को हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने पर पंजाब हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद दी। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज की पहली वापसी परवाज के जरिए 153 आज़मीन हज वतन वापस पहुंचे। निजी एयरलाइन की परवाज PA 873 जद्दा से मुल्तान पहुंची तो डायरेक्टर हज रेहान खोखर और दीगर आला हुकाम ने हाजियों का खैर मकदम किया। हुज्जाज कराम ने वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान के इंतजामात को सराहते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मकामात पर क़याम, नक्लो हमल, रिहाइश और खाने पीने समेत तमाम सहूलियात काबिल तहसीन रहीं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में 34 साल कबल भारतीय फोर्सेज के हाथों श्रीनगर के चोटा बाजार में कत्लेआम की तल्ख यादें आज भी कश्मीरियों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से कत्लेआम की 34वीं बरसी पर जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने 1991 में आज ही के दिन चोटा बाजार में बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए खवातीन और बच्चों समेत 32 बेगुनाह शहरियों को शहीद और 22 दीगर को जख्मी किया था। लोगों ने आज मज़ार शहदा श्रीनगर में हाज़री दी और शहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। उन्होंने आलमी इदारे से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ के खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे, जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने दे रखी है। दूसरी जानिब भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सांबा और दीगर सरहदी इलाकों में नाम निहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के लिए जंगी बुनियादों पर हथियारों की तरबियत का खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। तरबियती प्रोग्राम कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री के करीब मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिसमें आज़ादी पसंद कश्मीरियों की शनाख्त और उनको निशाना बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। फ़लस्तीनी नेशनल असम्बली के रुकन शेख मामून असद तमीमी ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया के मसाइल को हमेशा अपना समझा है। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पर लहूलुहान है। गजा हर तरफ से महसूर और खुराक, अद्वियात और पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने उजागर करना नागुज़ीर हो चुका है। शेख साद अल तमीमी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो इससे हमेशा याद रहेगा। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लंदन में आला हुकाम के दरमियान 2 दिन की बातचीत के बाद चीन के साथ मुआहिदा तय पा गया है। सदर शी जिनपिंग और ट्रंप की तरफ से हातमी मंजूरी के बाद अमेरिका को दरकार नायाब थाते मिल सकेंगी, जबकि चीनी तलबा अमेरिकी कॉलेजेस में अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि मैग्नेटिक्स और दीगर कोई भी ज़रूरी नायाब थात चीन की तरफ से फ्राहम की जाएगी और इसी तरह हम चीन को वो फ्राहम करेंगे जिस पर मुआहदे में इत्तफाक किया गया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। इस वक्त अमेरिका को कुल 55% टैरिफ हासिल हो रहा है, जबकि चीन को 10% मिल रहा है। गजा की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। गजा में इजरायली फोर्सेस के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुबह से जारी सियोनी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा के इमदादी मरकज़ के करीब इजरायली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग से 15 अफराद शहीद जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। महकमा मौसमियात ने 13 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील देखिए लाहौर से इकरा तहलील की इस रिपोर्ट में।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी और हीट वेव से मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवाएं चलने और हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सूबे भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिससे दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। तभी माहिरीन ने हीट वेव के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खसूसी एहतियात करने की हिदायत की है। जैसे कि हम अभी सेकंड वीक ऑफ जून चल रहा है और इसमें अभी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो हीट वेव कंडीशन है यही प्रिवेल करेंगी। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न पंजाब की, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। महकमा सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सूबे के तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स ऑपरेशनल हैं। तिब्बी माहिरीन की हिदायत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हीट वेव से बचा जा सकता है। इकरा तहलील, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए पहले दिन ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हो गया। लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर्स उस्मान ख्वाजा 0 और मार्नस लबोशेर 17 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कैमेरॉन ग्रीन ने 4 और ट्रेविस हेड ने 11 रन स्कोर किए। स्टीवन स्मिथ और बो वेबिस्टर ने निफ्ट सेंचुरियां मुकम्मल की। स्मिथ ने 10 चौकों की मदद से 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बो वेबिस्टर ने 72 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 11 चौके शामिल थे। 192 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 5 बैटर्स आउट थे। ताहम जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के बायस बकिया बैटर्स सिर्फ 20 रन का इजाफा कर पाए। कागिसो रबाडा ने 51 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्को जेनसन ने 3, महाराज और मर्करम ने एक विकेट अपने नाम की। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद दी है। खिलाड़ियों का कहना है कि हमें आप पर फख्र है। आपने मैदान में और मैदान से बाहर हमारी बहुत रहनुमाई की। सना जी, आपको ICC हॉल ऑफ फेम में जो एजाज़ मिला है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और हमें आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। सना मीर हमारी लेजेंड है। सना बाजी को ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। नो डाउट आप हम सब क्रिकेटर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। आपने अपनी सलाहियत, मेहनत और लगन से ये एजाज़ हासिल किया। Many congratulations to Sana Mir. It's an incredible achievement. You have always been the courageous person I have ever played with. FIH हॉकी नेशंस कप की तैयारी के लिए कौमी हॉकी टीम मलेशिया में भरपूर प्रैक्टिस कर रही है। नेशंस हॉकी कप 15 से 21 जून तक मलेशिया में खेला जाएगा। पूल बी में पाकिस्तान को मेजबान मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड का सामना रहेगा। कौमी हॉकी टीम अपनी मुहिम का आगाज 15 जून को मेजबान मलेशिया के खिलाफ मैच से करेगी। ग्रीन शर्ट 16 जून को जापान जबकि 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। सेमीफाइनल्स 20 जून को शेड्यूल हैं, फाइनल 21 जून को होगा। कौमी हॉकी टीम के कोच ज़ीशान अशरफ का कहना है कि तमाम खिलाड़ी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है हम टूर्नामेंट में अच्छे नतीजे सामने लाएंगे। इस टाइम हम जो है मलेशिया के शहर KL में मौजूद हैं नेशन कप टूर्नामेंट के लिए और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे इंशाल्लाह। और काफ़ी फिटनेस भी काफ़ी अच्छी लड़कों की। सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र इस चीज़ का है कि कोई इंजर्ड नहीं है हमारा प्लेयर और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तैयारी है हमारे हर शोबे में। हमने काफ़ी मेहनत की है, पाकिस्तान में भी और यहाँ भी हमें 1 वीक पहले आए तो उसमें भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त